Hello everyone, this is Suraj Prakash Singh, working as an assistant professor, School of Management Sciences, Varanasi. I welcome you all to the online video series on varieties of topics, in which we have already covered some of the topics of financial management in the previous classes. Today we are going for a more important topic, which is very much important in terms of examination, also in terms of knowing the financial management, what it talks about. So today we are going to talk about the objectives of financial management. I am telling you again that this is very important in terms of examination point of view, because many of the times the question comes regarding this: which one would you prefer, whether profit maximization, wealth maximization, whatever. So whole story will be taught by me to you today in this class. So let's begin with this one. So today, first of all, let me know, we should know when we are going for an objective, what an objective means. So objective होती क्या है? Objective are nothing but the aims and the goals towards which all the efforts are directed. इसका मतलब यही है कि आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं, everything whatever you are doing in the institution or in the what do you say, company or in the partnership, all your efforts should be directed, मतलब उसी की ओर जानी चाहिए ताकि आपका वो गोल अचीव हो सके. So I can say that objective are nothing but the aims and the goals towards which all the efforts of the individual, corporate, individual investors, सबका efforts सब उसी तरफ direct किया जाए. हम यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि ये बोला गया है, objective refers to the aims and goals towards which all the efforts. कहने का मतलब हर एक्टिविटी, every activity should be pointed towards achieving this one, towards achieving this one. Clear? हम ये चीज बोल सकते हैं कि हर वो ऑब्जेक्टिविटी हम यहाँ पर डील कर सकते हैं कि हाँ, हमें कुछ भी करना है, उस चीज को अचीव करना है. तो जाहिर सी बात है, इन द प्रीवियस क्लासेस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट how to manage, how to plan, how to control, how to organize, how to direct, and how to control the varieties of funds or the inflow and the outflow of the funds in the financial management. तो जाहिर सी बात है, जब पैसे की बात आती है तो उसका ऑब्जेक्टिविटी एक सटीक होना चाहिए जो हर कोई अप्लाई कर सके. वैसे आमतौर पर देखा जाए, in wherever in all the books you will get that the objectives of the financial management revolves around profit maximization and wealth maximization only. बट उसके अलावा भी और सारे भी ऑब्जेक्टिव हैं जो हम यहां पर एक पिक्चर के तौर पर देख सकते हैं. आप आइए देख सकते हैं, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट शुड बी ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट शुड बी ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अदर एक्टिविटीज, दैट मीन्स टाइमली अवेलेबल ऑफ रिक्विजाइट फाइनेंस, जब जिसकी जरूरत, जब फंड्स की जरूरत, तब आप उसे अवेलेबल कर सकें, यह आपका और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, दैट मीन्स whatever the resources you have to utilize in a best possible manner so that each and everyone can get the funds as and when they require. Safety of investment and growth, जाहिर सी बात है, कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पैसे डूबे ना बोल के, वो भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. और ग्रोथ, हम सब चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अगर पैसे ज़्यादा हैं तो उसको डबल हो या ट्रिपल हो, जो भी करना है. हर बुक में आपको यही मिलेगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में रिवॉल्व करा जाएगा. बट आप एक्स्ट्रा कब होंगे, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताने लगेंगे, तब लगेगा कि यस, यू कैन एलाबोरेट द आंसर्स इन अ डिफरेंट मैनर. सो दीज आर द ऑपरेशनल एक्टिविटीज विच वी शुड ऑल्सो फोकस. देन कम्स द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव. जाहिर सी बात है, वो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स कब फुलफिल होंगे, जब आपके फंड्स, जो फंड की जो नीड है वो फुलफिल हो पाएंगी, यानी पैसे. तो अब आप सोसाइटी के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक अबाउट द इंडिविजुअल एंड देन आफ्टर यू विल थिंक अबाउट द सोसाइटी. सो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो आर टू बी फुलफिल्ड. सो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, टाइमली सप्लायर्स, मतलब कहने का मतलब स्टेक होल्डर्स, दैट मीन्स द क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ऑल द इंस्टीट्यूशंस विच, आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा. इनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो रूल्स हैं, यू हैव टू फुलफिल दैट वन.
Then research objective, this is most important because if research is not there, then we cannot explore varieties of investment patterns. यानी तरह जो भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न अभी के दौर पर चल रहे हैं, अगर हम रिसर्च ना करें तो हमको दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगी. सो चलते हैं. सो ये तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विच यू कैन एड अप इन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, अमंग विच हमको सोचना है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और रिसर्च के बारे में. क्लियर? और बाकी जो पिक्चर है, हम अगर देखना चाहें बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चलते अपने बोर्ड की ओर. सो वी कैन सी दैट ऑल द थिंग्स हियर. So this one, when we will start this one, let us start this with the Blackboard features. So here we are talking about objectives of financial management. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Objectives of financial management. इस चीज को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? एम्स टुवर्ड्स विच ऑल द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड. इसमें हम और क्या क्या पढ़ चुके हैं? दीज आर ऑफ 4 काइंड्स. नंबर 1, दीज आर ऑफ 4 काइंड्स. basic objective. Second, social objective. Operational objective. Last is the research objective. मैं साथ ही साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, आप जब वीडियो सुने तब आप देख सके कि हाँ क्या क्या फीचर्स आ रही हैं, जिसमें वी हैव टू कवर दिस वन इन अ मोर इंपॉर्टेंट मैनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है विच कम्स इनटू द फैक्टर. ये आपको सोसाइटी के बारे में बताता है, ये आपको ऑपरेशनल रिगार्डिंग द ऑपरेशंस विच वी टॉक, and this is all about the research features. इसमें हम new alternatives can be achieved. ठीक है. सोसाइटल में every stakeholder is satisfied. And when we are talking about the operational objective, operations or activities like statement, analysis, etc. are to be done. So these are the 4 kinds of objectives which you can write, in which important one is the basic objective, which talks about the profit maximization and versus wealth maximization. तो हमारा अपने को इसको ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट वन. अब आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव विच इज एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा कि उस पे क्या आएगा और इस पे क्या आएगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ
मैक्सिमाइजेशन। इसके पहले जाने से पहले वी शुड नो व्हाट द प्रॉफिट इज एंड वी शुड नो व्हाट द वेल्थ इज। सो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, वी हैव टू सी इन दिस काइंड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नथिंग बट income minus expenses. Income minus expenses gives you the profit. When we are talking about wealth, it is nothing but the market value of the shares, or we can say that face value of the shares of the company. मैक्सिमाइजेशन मतलब ऊपर बढ़ाना, दिस इज ऑल्सो ऊपर बढ़ाना। सो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यानी कहने का मतलब एक शेयर होल्डर अगर उसके पास 100 रुपए का शेयर है, अगर वो 100 रुपए 110 बन जाए, 120 बन जाए, देन वी कैन टर्म एज कि हाँ वो वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। और जब हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तो इसका कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है। ये हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस या इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि अपना रेगुलर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट अ सेक। हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि नॉर्मल इनकम माइनस एक्सपेंसेस अगर होंगी तो वो चीज़ों को बता देंगे। अगर हम इस वाले फिगर में जब जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। अब एक एक चीज़ पे आएंगे, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती क्या है, क्या करना है, उस पर देखिए। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट ऑल द एफर्ट्स वॉट एवर यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट प्रॉफिट। हम चाहते हैं कि खाली प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बढ़ना एक तरह का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। हम देखने लगते हैं कि नहीं हमारा खाली प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। दिस इज नॉट गुड। वी हैव टू थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स हु हैव इंटरेस्ट, हु हैव मेक इंटरेस्ट इन दैट कंपनी ऑल्सो। यानी ऐसे लोगों के बारे में भी बात करनी है जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। हम खुद का प्रॉफिट कमा के वी कैन नॉट इंक्रीज द कंपनीज प्रॉस्पेक्ट। हमको शेयर होल्डर्स के बारे में, हमको स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचना है जो बता कहें कि हाँ। सो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ओनली दिस इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन, ठीक है। तो अगर हमारी हर एक गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने को लेंगी तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तौर पर जाएंगे। क्लियर, ये चीज होना चाहिए, उसमें फोकस कीजिए। लेकिन क्या ये सही है? इज इट ट्रू? शुड वी फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली? नो, द बिग आंसर इज नो। वी शुड फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो। यानी अगर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो ये दोनों को अपन को एडअप करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचना है। अब जब वेल्थ की बात आती है तो वेल्थ मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर या फिर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। आपको छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहूं तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को। जैसे मिस्टर ए के पास अगर 100 शेयर हैं, कितने वाले? 100 रुपए वाले। लेट्स से मिस्टर ए के पास 100 शेयर हैं 100 रुपए वाले। दिस इज ₹100। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट मैक्सिमाइजिंग दिस थिंग। अब जब हम मिस्टर ए के पास जब ये 100 शेयर थे और 100 रुपए में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कितने बने? 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपए का उसका वेल्थ बन रहा था। अगर हमारा एफर्ट्स सब कुछ फोकस करेगा कि इस 100 रुपए को हाउ टू इंक्रीज दिस 100 बढ़ाने का सोचेंगे
तो मान लो ये बढ़ जाता है 110 को लेके, एज्यूम दैट ये 110 बन जाता है। क्लियर? अब मिस्टर ए के पास आफ्टर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, आफ्टर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, नाउ मिस्टर विल ए हैव 110 को इसमें डिफाइन कर दो। इसमें 11 10 से 11 1 11 और 1 2 3, इसको अगर डिफाइन करें 1 2 3, देखिए कहीं ना कहीं अमाउंट में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हो। यहां पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना चाहिए, यानी हमको बढ़ाना है क्या? 110 को। दिस मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आपको पिक्चर शायद क्लियर हो गया कि कहने का मतलब maximization of wealth maximization is nothing but maximizing the stockholders utility, which again refers to the maximizing the face value of the shares or the market value of the shares which the shareholders have। तो हम एक चीज इसमें देख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आने के लिए हम आ कब रहे हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आ कब रहे हैं? बिकॉज जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी हम बोल नहीं सकते, ये उसके लिमिटेशंस हैं। एक तरह से हम इसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं। और प्रॉफिट इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड और इट कैन बी सेड एज वेग। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये किसको इग्नोर करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एजम्पशंस आर समहाउ नॉट करेक्ट। और अगर हम देखना चाहें एक बार के लिए, हम एक बार उस पर चल जाते हैं। अगर हम जस्ट अ सेक, दिस इज द आर्गुमेंट्स इन फेवर, इट इज द आर्गुमेंट्स अगेन नॉट क्लियर, इग्नोर्स द टाइम, इग्नोर्स द हाँ इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर। हाँ, दिस इज अगर हम इसको मिटाना चाहें इसको, हाँ, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर ऑल्सो, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी नहीं सोचता है, इग्नोर्स। अब एक एक पर फोकस करेंगे। ये क्या होता है? जब इग्नोर्स क्लियरली नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स वी कैन नॉट से दैट कि ये प्रॉफिट हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल प्रॉफिट है कि ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है कि ये नोशनल प्रॉफिट है। ये कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्या प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कहीं भी अटैच हो सकता है। क्लियर? सो ये क्लियर डिफाइंड नहीं है। इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आगे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक ओवरऑल तरीके से बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपए हैं। उस 10,000 रुपए को आप किसी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स में, जैसे कि मान लीजिए मैं रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं 10,000 रुपए कहां इन्वेस्ट करना चाहता हूं? रियल एस्टेट बिजनेस में, यानी बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। कौन ऐसा इंसान होगा जो 10,000 का 10,000 ही पाना चाहेगा? कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता है कि मैं 10,000 इन्वेस्ट करूं 5 साल के लिए और मुझे सिर्फ मिले 10,000। नोबडी, नो वन केयर्स अबाउट दिस वन। सो हम हर कोई चाहता है कि वो 10,000 का हमें 15,000 रुपए मिले। वी थिंक दैट, फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट मिस्टर ए invests 10,000 rupees and he think that the future inflow will be 15,000। ये जो 15,000 है ये आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। कैसे? कहने का मतलब that 10,000 of rupees becomes 15,000
और इट विल बिकम 15,000, ये चेक करने को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी फ्यूचर के वैल्यू को, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर के वैल्यू को अगर प्रेजेंट में जान सकें कि हां हम जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हमको 5,000 रुपए का कैश आउट इनफ्लो देगा, एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो देगा, देन वी आर ऑन अ स्टेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स वी आर सीइंग द फ्यूचर in the present with the help of discounting factor, or we can say that discounting rate। कहने का मतलब this 10,000 इस 10,000 को प्रेजेंट में हम देख पा रहे हैं that it will be 15,000 on the basis of discounting factor, let's say 10%। इस चीज को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर डालते हैं। इसका हम जो एक्चुअल फंडा है, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में टेक्निक्स होती है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली हो जाएगा। सिंपली अभी के लिए यही सोच के चलिए कि जब हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में, जो प्रॉफिट हुआ भाई प्रॉफिट हो गया, तो वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। अगर फ्यूचर के बारे में सोचना प्रेजेंट में, देन इट टेक्स the factor of time value of money। clearly ignores the risk factor। इस साल का रिस्क है, इसी साल खत्म हो जाए, फ्यूचर में क्या होना है we didn't take into consideration। डिविडेंड पॉलिसी पे अगर हम बात करें तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू whom? टू द शेयर होल्डर्स। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होगा, क्या आप प्रॉफिट को डिवाइड करना चाहेंगे? क्या आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे? नो वन केयर्स। फॉर दिस कंसर्न ओनली वी आर ignoring this profit maximization, or we can say that we are including this profit maximization factor in wealth maximization also। और wealth maximization इन चारों डिमेरिट को ओवरकम करता है। दैट मीन्स इन प्रॉफिट और इन, आई कैन से दैट इन व्हाट यू से, इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन these all are eliminated। यानी हम वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में भी सोचते हैं और रिस्क फैक्टर के बारे में भी सोचते हैं, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी सोचते हैं और फोकस करते हैं कि हाँ हमको कैसे कैसे ना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बढ़ाना है। सो आप अगर ये फिगर में देखना चाहें, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा with all the summary point, that एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, maximize the wealth to the maximum possible extent including the profit maximization। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, that it should be only maximize the wealth to the maximum possible extent। This means what? Maximize the face value of shares, which maximizes the portion or capitalization of the shareholder। अगर हम इन तीनों को फिगर आउट में लेना चाहें तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। सो हमारे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कीजिए, वो इंक्लूड कर लेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। आपके प्रॉफिट को बढ़ाइए, प्रॉफिट के साथ साथ अपने फेस वैल्यूज को बढ़ाने का भी सोचिए और मैक्सिमाइज करने का सोचिए कि क्या हो गया, यूटिलिटी बढ़ेगा कैसे। अब चलते हैं थोड़े से लिखे हुए पार्ट पर।
एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि क्या है। आखिरकार तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात किए गए हैं क्या, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। आर्गुमेंट्स इन फेवर, उसके फेवर में क्यों, हमको क्यों रखना चाहिए, बिकॉज इट्स द मेन एम ऑफ द बिजनेस, इट्स द बैरोमीटर फॉर चेकिंग आउट और एफिशिएंसी। हम एक बार के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एम क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह से आपका मेजरमेंट टूल होगा कि हम चेक कर सकें कि कैसे होगा। ये सब तो है, लेकिन आर्गुमेंट इन अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको बताएगा कि हमको नेक्स्ट दौर पर क्यों जाना है। बिकॉज डिमेरिट होने के बाद ही वी प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो आगे बढ़ने के लिए, हाँ मैं आपको पहले ही चारों एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये है मेन लाइन, थंब लाइन यही है दैट मैक्सिमम यूटिलिटी रेफर्स टू, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। इसको दूसरे कलर से ना, इसको ब्लैक से लिखते हैं। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो मैक्सिमाइजेशन शुड बी डन इन द लॉन्ग वे, इम्प्लाइज द इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द नॉर्मल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आगे बढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें आपको मैं फाइनली लिख दिया हूं कि हाउएवर दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो फेसेस सम ड्रॉबैक्स सच एज इट इज प्रेस्पेक्टिव आइडिया एंड मे नॉट बी सोशली डिजायरेबल विच आर नेग्लिजिबल। इन सब चीजों को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैव बीन एलिमिनेटेड एंड इट ऑल्सो कवर्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स विथ कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग द स्टॉक पर शेयर। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से लिखा हुआ है दैट स्टॉक पर शेयर हमको बढ़ाना है, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमको एलाबोरेट वे में बेसिक ऑब्जेक्टिव बतानी है, साथ ही साथ अलग ऑब्जेक्टिव्स भी को फोकस करना है, ताकि आपका आंसर एक सुनहरा आंसर बन सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप you have enjoyed. Wait for the next video, stay tuned for the next video, stay safe. Thanks a lot, have a good day to everyone.